Good evening, everyone, and welcome to today's webinar on emphasizing balance, growth, and inner peace. My name is Shiva Mata, and I will be your host for this insightful session. As we navigate through complexities of modern life, whether in business, personal development, or finding mental peace, these three elements are crucial to living a fulfilled life. Today, we are fortunate to have an inspiring guest who embodies all these aspects in his work and life, Mr. Rijwan Aditya, the chairman of COGEF and RF Global. Now, I would like to take a moment to introduce our esteemed institution that is IIT Patna. Established in 2008, IIT Patna is one of the India's premier institute for higher education in engineering, science, and technology. Located in the historic city of Patna, this institute is known for its cutting-edge research, innovative teaching methodologies, and a vibrant academic environment. IIT Patna's mission is to foster an ecosystem that nurtures not only academic excellence, but also the holistic personal development, producing graduates who are not just engineers and scientists, but also the leaders and problem solvers. In just over a decade, IIT Patna has produced exceptional graduates who have gone to make a significant contribution across the globe. Our alumni are holding key positions at some of the world's most esteemed organizations, including Google, Microsoft, Nvidia, and many more. This legacy of success impacts speaks volumes about institute commitment to excellence, innovation, and holistic development. Now, I would like to introduce our IIT Patna campus to you. Now it is with great pride that we welcome our distinguished guest speaker, Mr. Rijwan Aditya, the visionary chairman of Kojef Group and the founder of Rijwan Aditya Foundation Global. Mr. Aditya's remarkable journey from humble beginning to becoming the successful entrepreneur that has impacted countless lives. He embodies the principle of success, balance, and peace in both personal and professional life. Today, Mr. Aditya will share his wisdom on achieving balance and growth in every aspect of life and cultivating inner peace amid the challenges of business and daily pressures. Please join me in warmly welcome Mr. Rijwan Aditya.
Sir, are we audible? Hello, sir. Can you hear, Shivam ji? Can you hear now? Yes, sir. Okay, done. Thank you. It was mute and I was looking where to unmute. Okay. Oh, mashallah. Welcome, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. So, ball is in my court or still in your court? No, sir. Now it's all yours. Thank you. Thank you. First of all, thank you very much. Thank you all the leadership. And I'm so happy to see the online your university. Mashallah, visit karni padegi. I'll use more Hindi. Is okay, right? Yes. Okay, Yes, sir. I'll try to mix, but I'll see how I can manage. Okay. Congratulations, all the leadership for amazing work you have been doing for so many years. Because I saw so many leaders and so many successful people came out from IIT. That's a great achievement and it's a blessing. It's it's my due to come and visit and personally meet and interact with the amazing students. I can see so many people, so many students are online. I'm sure they will learn something and I will also learn something from you and from the students, because we'll try to keep the interactive question answers because it is a very important, and I would love to hear from the students. Okay, I'll start I'll go back when I was young and I was like from my humble background and humble beginning. I'll start from there. ओरिजिनल में पोरबंदर मीन्स महात्मा गांधी जी का गांव. तो बहुत सारी हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स, वाइब्स एंड एनर्जी है हमारे पास महात्मा गांधी जी के आश्रम से. एंड देयर इज अ फ्यू Mahatma Gandhi ji was born in 1869 and I was born 1969, exactly after 100 years. So कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन है महात्मा गांधी जी से. इसके लिए हम आज आपके प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए हैं. हमारे लिए, मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग और बहुत बड़ी अचीवमेंट है दैट आई हैव रीच्ड टू योर प्लेटफॉर्म वेयर अमेजिंग स्टूडेंट्स आर देयर. तो शुरुआत करूंगा. जो हमारा हम्बल बैकग्राउंड था, हम 9 जन का परिवार थे, 7 बच्चे और माँ बाप. और हमारे फादर थे, अकेले सोर्स ऑफ इनकम थे, जो मूंगफली, सिंगदाना, पता नहीं क्या बोलते, मूंगफली बेच के छोटी सी रेडी चला के 9 जन का परिवार को फिट करते थे. और छोटे से घर में रहते थे, बहुत छोटा सा हमारा घर था. और हमारे वो टाइम पे, आई एम टॉकिंग अबाउट 80s, एजुकेशन का कोई मोटिवेशन भी नहीं था, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं था, या कोई हमारे पास ऐसा कुछ था भी नहीं सोर्स ऑफ कि कहीं पे भी हम अच्छी स्कूल में, कोई भी हमारे जो 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स, ऐसे 7 जन हम भाई बहन थे, हम सिबलिंग्स थे. एंड आई वाज द यंगेस्ट चाइल्ड घर के अंदर. तो हमारे घर में कोई इतने पढ़े लिखे नहीं है क्योंकि वो टाइम पे इतना मोटिवेशन नहीं था. और मैं भी गुजराती में 10th फेल के बाद मैंने भी स्कूल छोड़ दिया था, जैसे हमारे दूसरे सिबलिंग्स ने छोड़ दिया था. लेकिन मेरे में एक यूनिक चीज थी, वो थी बचपन से रिलीजियस बुक्स. जैसे हम आगा खानी मुस्लिम है तो होली कुरान हमारा जीवन का हिस्सा है, जैसे दूसरे मजहब की बुक्स है जो रिलीजियस बुक्स है. तो वो बचपन से मैं पढ़ता था और बहुत डीप में मैं पढ़ता था, और उसमें मुझे बहुत खुशी मिलती थी, बहुत आनंद आता था और कुछ सीखने को मिलता था. पर्पस ऑफ लाइफ, या व्हाई आई एम बोर्न एज ए ह्यूमन, ऐसे बहुत सारे सवाल भी छोटी सी उम्र में मुझे होता था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जवाब उसमें से मिल जाता था. तो मैंने वो कंटिन्यूस रखा और 13-14 साल की उम्र तक मैं एक लेवल पे पहुंच गया जहां मुझे बहुत सारी समझ आ गई थी. हालांकि दुनिया का इतना नॉलेज नहीं था, गरीबी इतनी थी और फैमिली में ऐसा कोई मोटिवेशन भी नहीं था, लेकिन बस अकेले में रहना
और बुक्स पढ़ना और इसके ऊपर सोचते रहना, यही मेरा बचपन था। Okay, I'll try my best. I got the one message, they doesn't understand Hindi, but I'll see my friend. Don't worry, I'll not skip you. तो बचपन से उसके अंदर ही when I reached to like around 13-14 years of age, मैं थोड़ा समझ गया मैं कि लाइफ पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। और पहली चीज, one thing, first thing I learned from the holy books was the morning time is a very blessing, very spiritually powerful time है, जिनको हिंदी में बोलते हैं पहला पैर। हम बोलते हैं 8 पैर की साइकिल है, सूरज निकलने से 3 घंटे पहले शुरू होता है, 3 hours before sunrise. So I saw these 3 hours from like 6 o'clock sunrise, then go back 3 hours is 3 to 6, a very powerful spiritually. And age of 14, I started waking up at 3 a.m. and I started practicing meditation. So at the beginning was challenging, difficult, but as I learned from the holy books, तो मैंने सोचा कि नहीं, इसको मैं कंटिन्यूस करके देखता हूँ, हाउ आई कैन मैनेज एंड हाउ आई कैन कंटिन्यूस। तो वो पहली चीज मेरे जीवन का मेरा हिस्सा बन गई, इट बिकम माय पार्ट ऑफ लाइफ। देन आई मूव टू another thing which I understood, how to develop your subconscious mind. मैं हर स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा, ये 2-3 चीज है ना, ये आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए, पार्ट ऑफ, शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। No need to wake up 3 o'clock in the morning. It will be very difficult for you because you are students and you have so much to do. But that time I was free and I didn't have much to do, so it was easy for me to wake up 3 o'clock and do all these things. The second thing I learned, the development of power of subconscious mind, जिनको हम अफर्मेशन बोलते हैं, कि खुद से बातें करो, अपनी जात से बातें करो, पॉजिटिव बातें करो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो। I will explain in later stage all this. Third thing I learned, the visualization, कि आगे का कैसे, फ्यूचर का कैसे विजुलाइज करते। जैसे हम बोलते हैं बड़े बड़े ड्रीम करो, तो ड्रीम के साथ साथ विजुलाइजेशन अपना करने का, अपना फ्यूचर के लिए कि विजुलाइज कैसे करना। तो देन आई लर्न एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट। इसके बाद मैंने, हमारी प्रेयर्स होती है, बड़े बड़े ड्रीम कैसे करना, हमारे जीवन के एम हाई रखना, ये सब चीजें आई वाज लर्निंग फ्रॉम होली बुक्स एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट के कैसे ये वर्क करती है। बिकॉज आई डिडंट नो एनीथिंग, आई डिडंट हैव एनी मेंटर, आई डिडंट हैव एनी लाइक who can guide me and explain me what are all these things. But I was doing personal level when I was trying to achieve something, you know. तो स्लोली ऐसे करके बाद में मैंने योगा सीखा, तो मैंने योगा शुरू किया। वॉक का इंपॉर्टेंस पता चला कि हमें एटलीस्ट 20 मिनट्स वॉक करना चाहिए बिफोर सनराइज और आफ्टर सनराइज, ताकि विटामिन डी भी मिल जावे, और वॉक से भी बहुत सारे फायदे। ऐसे फ्रॉम 3 to 7 आई स्टार्टेड गिविंग माई सेल्फ age of 14, and today, as I said, I was born in 69, so almost 55 years I have crossed. आज भी रोज 3 बजे उठता हूँ और पहले 4 घंटा में अपने आप को देता हूँ। और बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव में अपने आप से बातें करता हूँ, लाइक सबकॉन्शियस माइंड की मैंने बताया। तो खुद से बातें करना, जो भी आपको जीवन में अचीव करना है, जो भी आपको जीवन में चाहिए, वो अपने आप से बोलना। जैसे मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, आई एम ए विनर, आई एम द बेस्ट, ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव है। और जो भी हमारे ड्रीम्स है, वो हमारे ड्रीम्स को अपने को अकेले में जब होवे हमें बातें करना चाहिए। बहुत लोग मिरर का इस्तेमाल करके अपने आप से बातें करते, एटलीस्ट सामने वो दिख रहे किसी को कोई है, तो वो हिसाब से भी कर सकते हो। और मेरे बहुत सारे वीडियोस भी है इंस्टाग्राम, यूट्यूब में, तो आपके स्टूडेंट्स उसमें से एग्जैक्टली सीख सकते हैं। तो ये मेरा पहला पार्ट ऑफ लाइफ था। और सेकंड थिंग आई लर्नड वाज मानव सेवा, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। दैट इज ए मोस्ट, हर एक इंसान के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ न कुछ एवरी डे छोटा सा भी एक्ट हमें करना चाहिए, चाहे किसी को गाइड कर देवे, चाहे किसी को रास्ता दिखा देवे, चाहे किसी को पानी पिला देवे, चाहे किसी कोई तकलीफ वाले से सर पे हाथ रख के बोले एवरीथिंग विल बी फाइन। बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जहां अपने को पैसे की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे हमारे फ्रेंड सर्कल डिप्रेस या परेशान होते हैं, उनको मोटिवेट करना, एक पॉजिटिव वाइब्स देना कि फिक्र नहीं कर, ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। ऐसा बहुत सारे छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं जो हमें
करना चाहिए, हर आए दिन करना चाहिए। जो मैंने 15 साल की उम्र में ये चीज मैंने मेरा जीवन का हिस्सा बनाया था। शिवम जी बराबर है, सुनाई दे रहा है ना? परफेक्ट है। ओके ओके। तो वो मेरा जीवन का हिस्सा बना। इन 1985 एज ऑफ 15 and half when I left the school 10th after 10th fail, मेरी फर्स्ट जॉब थी वो हमारे गांव के अंदर छोटे से स्टोर के अंदर, और मेरी महीने की सैलरी थी इट वाज 175 इंडियन रुपीस पर मंथ, and I was working from 9 a.m. to 9 p.m. 12 hours of duty, and end of the month I was getting 175 Indian rupees. इक्विवेलेंट यूएस डॉलर में हम कैलकुलेट करें आज के टाइम में तो 10 यूएस डॉलर पर मंथ होता था. Okay, but that time for me, as my humble background was that, so it was for me it was a quite a big amount, and you won't believe, I don't know how it was happening. The most of the my salary was going to help other people. पता नहीं क्यों मुझसे ये होता था. Still today I don't understand how I was helping the other people with this small amount which I was getting after working very hard 30 days. But it was happening. The miracle happens every day in life, and it was happening, and I was helping other people. I was feeling good, and I was feeling very blessed, and things was moving very well. Okay, to cut the story, then as of 17, I got the opportunity to go to Africa with the $200 salary, so 20 times more what I was getting in India in my hometown. So you can first understand how it happened, this miracle, because I was helping the other people, and God doesn't forget you. You know, when you help someone with the one hand, God will help you with the 10 hands and 100 hands. So that I got the opportunity. That is a proof that I was helping with small amount, and God jumped me, and miracle happened, and I got the opportunity to go to Africa. And Africa में बहुत सारी challenges face किया, बहुत सारे ups and down देखे, बहुत सारी जगह पे ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि अभी आगे क्या होगा हमारे जीवन का, लेकिन हमने खुद के ऊपर भरोसा रखा, परमात्मा के ऊपर भरोसा रखा, और लॉन्ग टर्म की हमारी सोच थी, लॉन्ग टर्म के हमारे ड्रीम थे, और हैबिट थी मेरी बुक्स रीडिंग की, चाहे वो रिलीजियस बुक्स हो. उसके बाद तो मैंने दूसरी मोटिवेशनल बुक्स भी रीड करना शुरू कर दिया था, दूसरे रिलीजियस बुक्स भी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था ऑलरेडी. तो बहुत सारे पॉजिटिव मुझे वहां से जवाब मिल रहे थे. वेट, एवरीथिंग विल बी फाइन. जो इंसान वो बोलते हैं ना, सब्र करना जानता है और इंतजार करना जानता है ना, वो हर चीज वो हासिल कर सकता है. तो वो पेशेंस के साथ इंतजार भी साथ में होता था, और चीजें पॉजिटिव होती जा रही थी. तो टू कट द स्टोरी, अभी जैसे आपने प्रोफाइल में लिखा है आपके कि ओवर 4000 एम्प्लॉइज है, और 10 कंट्रीज के अंदर बिजनेस है, और उनका चेयरमैन मैं हूं. तो ये मेरी छोटी सी जर्नी है जो आप स्टूडेंट्स के साथ मैंने शेयर किया. और नेक्स्ट पे हम जाएंगे क्वेश्चन आंसर बीच बीच में, ताकि इंटरेक्टिव रहे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और कुछ सीखने भी मिलेगा. Sure, sir. Thank you, sir, for the inspiring message. Now we will now open the floor for an interactive question answer session. I encourage everyone to submit your question in chat box, or you can use a raise a hand feature. Yeah. Please raise a hand. Yeah. I will unmute you. Yes, please go ahead. Hello, good evening, sir. Good evening. Sir, I would like to ask you, what advice would you give to aspiring leaders about importance of integrity and ethical decision making? Okay, very good question. Very good question, because integrity and ethical values is our part of life.
without that there is no life. So it's a very important, because you can be leader, but quality of leader and first priority of the leadership is the ethical values, ethical principles, because community or followers follow the leaders. So leader is not just a leader. Leader is like a mentor. It's like a guider. So it's a very important that each and every leader should understand this basic concept of the leadership. The ethical values, ethical principles, ethical actions, ethical everything, they are bound with the ethics. Clear? Okay, thank you so much, sir. It was very inspiring for me. Thank you. Thank you very much. Yes. देखो, आप बोलोगे तो काम होएगा, थोड़ा होएगा, ज्यादा होएगा, लेकिन कुछ होएगा. You have to come up. मैं बोलता रहूंगा, after few minutes you'll start getting bored and you start getting like quit. So better let's have interactive session, and then next time I'll come there, we'll have more questions, more interactive session in person. I'm sure Shivam will invite me. Hello, sir. There's a question in the Yes. chat box. So it's a question from Janil that so do you think that there are better opportunities abroad than India? मतलब इंडिया से बाहर कोई better opportunities हैं स्टूडेंट्स के लिए? देखो, लोगों को काम करना है, लोग सीरियस है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया में है. वर्ल्ड इज अ ग्लोबल वर्ल्ड बिकम टू स्मॉल, एंड इंडिया itself is an opportunities country, because we are the number one in terms of population wise. We are very stable country. We have a great leaders, though there are so many, there are few challenges are there. It will be always there because country is too big, but opportunities are there everywhere in the world. And now is a global market. It's a pluralism, diversity is there, and इंडिया के अंदर भी इतनी अपॉर्चुनिटी है जितनी अपॉर्चुनिटी अब्रॉड में है. आपका ड्रीम क्या है, कौन से एरिया में आपकी स्ट्रेंथ है, कितनी आपने डेवलप किया है, क्योंकि अभी हम डिफरेंट वर्ल्ड में है. 20 years 30 years back when I was young was completely different world than today's world. That time you are not educated. We didn't have the digital world. We didn't have the AI. We didn't have anything. Okay, so that time for us, like uneducated people, formal way I'm talking about, and not life wise, I have learned a lot, but I'm talking about a formal secular education. I didn't have, but still I went to Congo without knowing even a completely English or ABCD. I didn't know even ABCD complete ABCD that time when I went to Congo. But I struggled. I worked very hard. But today, only work very hard without having knowledge is a big challenge to get the opportunity or to succeed in the world anywhere, including India. So that time was different word. Today is a different word. So formal education, yes, you need, but with formal education, you have to have the lifelong learning. Life education also is a very important today. Practical education is a very important. So opportunities are there in India as well as in abroad. Hello, sir. Okay. Good evening. Yeah, I'm Sir, reading next question is, everything. how do you balance self-growth with other responsibilities in life? Sorry, how? Hello? How do you balance self-growth with other responsibility life? Oh, it's a very, 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 very valid questions. Because first thing we need to understand, we all have 24 hours. Whoever succeeded in the life, they have a 24 hours. We have a 24 hours. So it's depend on us. Like myself, I'm very balancing person. I wake up, my day starts 3 a.m. and complete by 9:30. That's my my time management. But during from 3 a.m. to 9:30, I'm balancing all my responsibility,
family responsibility, my personal health wise, my responsibility, my business responsibility, my ethical and religious responsibility. I'm managing everything. Still, I have some more time to do the social work, to spend some time with the friends. So it's depend. वो बोलते हैं ना, आज के लोग है ना ज्यादा व्यस्त बोलते हैं, बट व्यस्त नहीं होते, अस्त व्यस्त होने के होते हैं. इसके लिए वो मैनेज नहीं कर पाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. अदरवाइज 24 hours, it's a too much God has given us. We can do so many things and we can achieve so many things. So balance लाइफ टाइम निकाल सकता है इफ वी डिसाइड. इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी देखो मेरे पास पेपर लिखा हुआ है, मेरा वॉलेट अभी मेरे पास यहाँ नहीं, अदरवाइज आई वुड शोन द पेपर. उसमें मैंने लिखा है 24/7 168 आवर्स पर वीक. अभी 168 आवर्स को मैंने डिवाइड किए. आई स्लीप 6 hours, normally 5.5, but I 6. So 42 hours I sleeping time from 162 hours. I work only 6 hours a day. I don't work much. So Monday to Saturday, Sunday I don't work. So only 36 hours. So and you will find on my social media this time management chart. Oh, I can send the Shivam ji. He will share with you maybe tomorrow or this evening. तो ऐसे हमने डिवाइड किया कि कहाँ मुझे कितना टाइम देना, फैमिली को क्वालिटी टाइम कितना देना. तो बोला 2 hours a day इनफ है फैमिली को. मोबाइल को साइड में रखते, पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ 2 hours क्वालिटी टाइम. तो ऐसे मैंने बनाया है और वो मैं शेयर करूंगा बाद में, जो आपको मिल जाएगा. तो बैलेंस लाइफ अपने अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम कर सकते हैं, फिर भी हमारे पास इनफ टाइम बचेगा और चीजें करने के लिए. लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, मैं दूसरे क्वेश्चन से जाने से पहले, कि हमें हमारे लाइफ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है उसको हमें नोट डाउन करने, गोल सेट करना पड़ेगा. जैसे हमारे लिए वॉक या योगा जरूरी है, हमें कुछ 10 minutes 20 minutes निकाल के हमें ये करना है, मीन्स करना है. ठीक है, आप once a week if you miss is okay due to some other work or late sleeping or any other reason, बट ये डालना है कि हमारे लिए अच्छी बात है. आज के ये कल मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है. मेरा वीडियो कल सुबह लॉन्च होने वाला आने वाला है सोशल मीडिया पे. आप प्लीज सुनना, 2 मिनट 1.5 मिनट का वीडियो है, क्योंकि मेंटल हेल्थ बिग चैलेंज होती जा रही है आज के टाइम में. हर एक इंसान, ऐसा नहीं जिनके पास नहीं है, जिनके पास बहुत कुछ है वो भी मेंटली कहीं ना कहीं परेशान होता है. तो वो मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए या वहां हमें पीस एंड हैप्पीनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है योगा है, मेडिटेशन है, सबकॉन्शियस माइंड का पावर है और प्रेयर से. ये 3-4 चीज हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए, शुड बी अवर पार्ट ऑफ अवर लाइफ, बिकॉज दिस ओनली कैन गिव अस द पीस, satisfaction या inner strength to fight any challenges in our life, whether it is now or is in coming. Because अभी कभी भी कोई भी समय पे कोई भी challenges हमारे जीवन में आ सकती है. तो हमें, वो बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है कि कोई भी चैलेंजेस सडनली, और आप सबकी लाइफ में भी आती होगी, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स की लाइफ में आप देखते होंगे. तो इस वो क्योर करने के से पहले प्रिवेंशन ले लेवे कि मेंटली हम इतने रेडी हो जावे कि एनी चैलेंजेस कम्स इन लाइफ, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट and work on it, and maybe sometimes you can convert into opportunity. That in my life so many challenges. पता नहीं शिवम जी ने मूवी के बारे में बताया, मेरे जीवन के ऊपर बायोपिक है YouTube पे बहुत सारी लैंग्वेजेस में. रिजवान मूवी आप देखना, 2 hours and 6 minutes की लंबी मूवी है. मैं मार्केटिंग कर लेता हूँ थोड़ा. आप लोग देखना. बहुत सारी चैलेंजेस आई थी, लेकिन अपने आप को मैंने बहुत संभाला. क्यों? बिकॉज फ्रॉम द एज ऑफ 14 I was waking up 3 a.m. and practicing meditation, subconscious mind, yoga, visualization, and it has been helping me last 40 years. और सर मैंने तो डेफिनेटली वो मूवी देखी है एंड मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग थी. इवन आपके जो सेटबैक से, एंड यू ऑलवेज लाइक कि आपके पास जब भी सेटबैक आया है ना, आपने हमेशा उसके बाद बहुत इम्पैक्टफुल कमबैक किया है. तो सर वो मेरे लिए तो बहुत इंस्पायरिंग था. एंड मेरा एक अलग क्वेश्चन यही था सर आपसे, एक क्वेश्चन मेरा ही है. यूथ के लिए ज्यादा इंस्पायरिंग है, क्योंकि
यूथ की एज है ना, सॉरी मैंने आपको कट कर दिया बट आई विल कम बैक टू यू। यूथ आपकी जो एज है ना, यूथ जो आप देख रहे हो मेरे सामने बैठे हो, आपका यूथ आपके जीवन का फाउंडेशन है। जैसे ट्री अपना पौधे होता है, उनका फाउंडेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, इतना ट्री ऊपर जाएगा और ज्यादा फ्रूट्स देगा। और दूसरा एग्जांपल हम बिल्डिंग का लेते हैं कि हमें 10 माले की बिल्डिंग बनानी है, तो उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है ताकि 10 माला सही सलामत रहे। ऐसे आपकी जो एज है ना, वो आपके जीवन का फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन को जितना पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव आप बनाओगे, उतनी आपकी लाइफ ब्यूटीफुल, और नॉट ओनली द ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी और दूसरे लोगों को काम आएगी। ह्यूमन फॉर ह्यूमंस जो हमने लॉन्च किया है अभी 2 अक्टूबर को, कि आप इंसान हो, आप दूसरे इंसानों के लिए हो, आप अपने लिए सिर्फ नहीं हो, अपनी फैमिली के लिए नहीं हो, आप दुनिया के दूसरे इंसानों के लिए। दैट्स व्हाई we have launched recently human for humans on 2nd October गांधी जयंती। yes sir, शिवम जी आप कंटिन्यूस करिए। जी, now moving to next question. yes एक First of all, क्वेश्चन it's ऊपर चला गया। great to have you. yeah please go ahead। should I read and respond or I can wait? Sir, you can wait, sir, like, but you can respond, sir, like, now. Just hello. yes I can hear, please go ahead। Yeah. Sir, question is like, what strategy are single team, like, one of the channel? I can't hear well। शिवम जी can you repeat his questions okay, if you sir. heard? Hello. I think your net internet is I not hope good। शायद आवाज Can- शायद नहीं आ रही थी। yes आवाज नहीं आ रही थी, कहीं सुनाई नहीं दे रहा है। But either question is there, good Nirmit Chaurasia, good evening sir. What is the definition of success? When can one deem himself herself as successful enough? Can I go with these questions because I can't hear his questions? Yes sir, yes sir, Okay, sure. questions, right questions. What is the definition of success? Is a very good question because you know everybody has their own way to define their own success. Okay, but my definition is success is a balanced life. In simple one line, I would say balanced life. If you are success with your money, but you don't have time with for your families, for your friend circle, for your personal life, as I said, for your health, then you are not successful. You are a great failure. So success definition is a very important to understand well, because today everybody is focused on making money because पैसे से सब कुछ मिलता है। नहीं, पैसे से सब कुछ नहीं मिलता है। पैसे से गधों की वो क्या बोलते हैं फौज मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। पैसा जरूरी है, वो बोलते हैं ना पैसा नमक की तरह होता है, जरूरी होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हुए तो जिंदगी का स्वाद भी बिगाड़ देता है। तो पैसा इज नॉट only the success. Yes, is a part of success, but you have to have a balanced life. Is a very important. Plus दूसरा क्या है, पैसा कैसे बनाता है? How do you make money? There are many people making money by corruption, by doing wrong things, by selling wrong things. So there are so many ways of making money. So paisa is not only the success, but clear definition is a balanced life. It's life where you have enough time for your family, your children, your own self, your health. As I said, yoga, meditation is a very important. It should be your part. Like my life, my definition of success is a balanced life, which I have been following last 40 years. That's why I never compromise to wake up 3 o'clock in the morning and practice all these things. Now I don't need, I have enough, I have everything. I have a good family, I have 2 daughters, beautiful 2 daughters. We are very happy, we all are, that's my success, but still I focus on wake up 3 o'clock and doing all these things because that's the most important, because this is the definition of success. You have to have the balance and you have to have the self-discipline where you can say you are successful.
Sir, one Yes, question go from ahead. Harsh. What is more Yeah. difficult, being an employee or an employer? Today's world, everything is difficult. But question is right. First, first you are employee, right? So you find your employer is very difficult person, but tomorrow you become employer, then you will say your employees are very difficult people. They are giving me so hard time. They are giving me trouble, and they are not performing. So it's जो बोएंगे ना वही पाएंगे. Okay, so you can this use as in positive way. Okay, instead of more difficult being an employee or employer, you can say in positive way के कौन सा अच्छा है, एम्प्लॉय बनना या एम्प्लॉयर बनना. तो फर्स्ट एम्प्लॉय बनना एंड देन एम्प्लॉयर बनना. और एम्प्लॉय बन के जो क्या बोलते हैं उसको, अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपना जो भी काम हो उसको बेस्ट तरीके से हमें करना होता है, परफॉर्मेंस बेस्ट देना होता है. बिकॉज टुमारो देन यू बिकम एम्प्लॉयर इन योर ओन बिजनेस, you can expect with your employees the same thing what you have practiced. आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपने जिस काम करने के लिए वो 30 डेज काम करके सैलरी या तनख्वाह के लिए काम किया है, एंड टुमारो यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू बिकम एम्प्लॉयर, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम योर एम्प्लॉइज दे विल परफॉर्म बेटर देन व्हाट यू हैव परफॉर्म्ड. दे विल परफॉर्म द सेम थिंग, बिकॉज जो बोया है वही आप काटोगे. सो व्हेन यू आर एम्प्लॉय, डू योर बेस्ट. एंड प्लस आज के टाइम में इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड लर्न एवरी डे, बिकॉज डिजिटल वर्ल्ड यू कैन नॉट स्टॉप लर्निंग. इफ यू अपना लर्निंग बढ़ाओगे तो अर्निंग बढ़ती जाएगी, डेवलप होगे, ग्रो होगे, सक्सेस होगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे. क्योंकि आज कल क्या पढ़ा था वो आज वैल्यू नहीं रहता है, आज आपको पढ़ना पड़ेगा. स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, whatever you studying, carry on doing best and study. But beside the university, or in different ways, you have to learn and you have to develop your talent. You have to develop your strength, and then only you can be success and you can be employer. But keep in mind and keep in your dream that you want to be employer. Next question, please. Can you please guide how to handle setbacks, failure, and bounce back again? Wow. मूवी, आप मूवी देख लेना, मिल जाएगा आपको जवाब इनका. बट बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आज के टाइम में वैलिड क्वेश्चन है ये. क्योंकि सेटबैक है ना हर एक की लाइफ में आएगा. आज के टाइम में तो 100% आएगा. यू हैव टू एक्सपेक्ट failure, setback. You have to accept. You have to be prepared. That's why I said, but अपना preventive is better than cure. So preventing पहले से रखना है कि setback आने वाला है. तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी सेविंग करना. सबसे पहले जहां भी जो भी आपको मिल रहा है, आपके खर्चे में कंट्रोल करके आपकी सेविंग बढ़ाते जाओ. और मैं मेरे वीडियोस में भी मैंने बहुत बार बोला है कि सेविंग बढ़ाने का मतलब ये भी नहीं है कि आप बैंक में पैसे डालते जाओ और बैंक में आपको इंटरेस्ट मिलता है. वो आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो जो भी मिलता है इंटरेस्ट, इससे ज्यादा आप पैसे की, करेंसी की डिवैल्यूएशन में आप लूज कर रहे हो. तो सेविंग आपको बचाएगी सेटबैक से और फेलियर से, क्योंकि आपके पास कुशन होगा. तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप क्या करते हैं, आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना शुरू करो. छोटी छोटी अमाउंट जो भी आप सेव कर सकते हो, और कोशिश करो अपने खर्चे को, अननेसेसरी खर्चे से बचे और सेविंग के ऊपर फोकस करो. और सेटबैक एंड फेलियर अपने जीवन में एक्सपेक्ट करो. कोई भी मोड़ पे जाके आएगा. जरूरी नहीं है कि अभी आप यंग हो तो अभी नहीं आएगा, या 10 साल बाद नहीं आएगा. और एक ऐसा भी नहीं है एक बार सेटबैक आ गया, एक बार आप फेल हो गए और दूसरी बार आपने बाउंस बैक कर लिया, देन यू आर सक्सेसफुल. नो, यू विल बी रेडी फॉर गेट अनदर अटैक ऑफ सेटबैक. तो वो अर्थक्वेक तो बार बार आएगा. ये वॉर, ये जो चल रहा है, बहुत सारी नेगेटिविटी, तो हम डायरेक्टली इसमें इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें पीछे ले जा रहा है ये सारी चीजें.
और ये बढ़ती जाएगी क्योंकि हमारे लीडर्स के, हमारे मीन्स वर्ल्ड के लीडर्स के इतने लेवल पे ऊपर पहुंच गए हैं कि जहां उन लोगों के लिए, हमारे लिए सोचने के लिए टाइम नहीं है और हमारे पड़ी भी नहीं है. दे डोंट केयर अस व्हाट वी पासिंग थ्रू. तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेटबैक और फेलियर के रेडी रहो और अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करो. मेरा एक ही सवाल है, मेंटली स्ट्रांग करो. मेंटली स्ट्रांग करने के लिए आपके पास और कोई रास्ता नहीं है. ठीक है, मानव सेवा इंपॉर्टेंट है, वो करोगे तो कहीं न कहीं पीस, सुकून आपको मिलेगा. बट बिसाइड दैट ऑन रेगुलर बेसिस के ऊपर, जैसे मैंने बताया, मेडिटेशन, योगा, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको दिमाग में डालना चाहता हूँ क्योंकि मैं सालों से मैं कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे पता है. और आज जो हम बिजनेस के अलावा एनजीओ चलाते हैं, इसके अलावा ये ऐसे काम भी करते हैं, टाइम निकाल के इंटरेक्टिव सेशन करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज कर रहे हैं क्योंकि मैंने बताया 24 hours is too much for us. We can do so many things at a time. Okay, so setback, failure is part of life. Don't worry about that. You be strong, trust yourself, trust your God. And वो बोलते हैं ना, believe in yourself is the first key of success. So just believe in you, then there is no setback, there is no failure, there is always success, success and success. सर एक क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में एंड ये मेरा को भी आपसे क्वेश्चन पूछना था, हाउ टू हैंडल फेलियर, बिकॉज आपकी जर्नी हमने देखी थी, आपके पास जब भी फेलियर आया आपने बहुत एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है. सो इससे अच्छा जवाब आपसे अच्छा जवाब इसका कोई नहीं दे सकता, हाउ टू हैंडल दैट फेलियर. देखो, सबसे पहले है ना, फेलियर वर्ड से ना हमें नेगेटिव लगता है, लेकिन आप भूल जाते हो कि आपको सीखने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है, फेलियर का. आपको जब तक सक्सेस मिलती रहती है हर चीज में, तब तक आप कुछ सीखने के मूड में भी नहीं हो, आप सोचते भी नहीं हो कुछ नया सीखने का, क्योंकि लाइफ इज गोइंग वेरी वेल, वेरी स्मूथ. So you don't think anything else. But when failure comes, when setback comes, then you pause and सोचना शुरू करते कि ये क्या हो गया, अभी कैसे उसको मैं हैंडल करूं, अभी मेरा क्या होगा. ये सब सवाल आपके सामने आता है. मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा इसके ऊपर. एक आदमी सुबह उठता है तो उनकी वाइफ उनको बोलती है, घर पे कुछ ग्रोसरी वेजिटेबल कुछ है नहीं, तो प्लीज आप लेके आओगे तो जाके खाना बनेगा. तो उसका हस्बैंड ने बोला, ठीक है, मैं आज दोपहर को लेके आऊंगा. थोड़ी देर हुए तो उनके दोनों बेटे आए कि पापा स्कूल फीस अपनी पेंडिंग है और प्रिंसिपल ने बोला है कि जल्दी फीस खत्म करो. तो उसने बोला, ठीक है बेटा, मैं कुछ करता हूँ. अभी वो रेडी होके निकलने के मूड में थे तो उनके फादर उनके रूम में से आए, बोला, बेटा मेरी मेडिसिन खत्म हो गई है, मेरे लिए मेडिसिन लेके आना. तो वहां उनको बोल दिया फादर को, ठीक है मैं कुछ करता हूँ. अभी वो बेचारा रेडी ऑफिस जाने के लिए निकला तो बाहर, घर के बाहर निकलता है तो लैंडलॉर्ड खड़ा है कि आपने 3 महीने का रेंट पे नहीं किया, तो आप प्लीज मुझे रेंट के पैसे चाहिए. तो वो तो बेचारा वैसे ही परेशान है, घर के वेजिटेबल ग्रोसरी के लिए पैसे नहीं थे, मेडिसिन के लिए पैसे नहीं थे, बच्चों की स्कूल के लिए फी भरने के पैसे नहीं थे. अभी ये मकान मालिक आके खड़ा हो गया कि 3 महीने का रेंट चाहिए. उसको भी बोला, मुझे थोड़ा टाइम दो, चलो मैं कुछ करता हूँ. अभी वो ऑफिस पहुंचा, थोड़ी देर काम कर रहे तो उसका सीनियर ने उसको बुलाया और उसको बिठा के बोलते हैं कि अपनी कंपनी अभी लॉस में चल रही है, तो हम थोड़े एम्प्लॉयज को कट कर रहे हैं, तो आपको भी ये 15 दिन के बाद आपकी जॉब चली गई. अभी आप सोचो, एक आदमी के पास घर में पैसे नहीं है खाने ग्रोसरीज के लिए, मेडिसिन के लिए, पेरेंट्स की, बच्चों की स्कूल की फी भरने के लिए पैसे नहीं है, हाउस रेंट भरने के लिए पैसे नहीं है, अभी उनकी जॉब चली गई. वो आदमी की क्या हालत है, इनको बोलते हैं फेलियर. लेकिन उसमें एक चीज अच्छी थी, वो इंसान जो एरिया में रहता था ना, वो बहुत ईमानदारी से और सबके साथ अच्छे रिलेशन उसने रखा था और सबके साथ प्यार मोहब्बत से वो फैमिली रहती थी. किसी के साथ कभी झगड़ा नहीं, कोई नाम खराब नहीं, ईमानदारी में कोई कॉम्प्रोमाइज उसने नहीं किया जीवन में. तो वो वहां से जॉब में से भी निकल गया और सीधा गया ग्रोसरी वालों को जाके बोला कि प्लीज मुझे ग्रोसरी दे, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा. क्योंकि उनका नाम अच्छा था तो ग्रोसरी वाले ने ग्रोसरी दे दिया. मेडिसिन वाले मेडिकल स्टोर में जाके उनसे बात किया
तो उन लोगों ने बोला अरे आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इतने अच्छे इंसान हो, लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां से उसको मेडिसिन मिल गई। प्रिंसिपल को जाके बोला मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मेरी जॉब भी छूट गई, प्लीज मुझे और टाइम दो, मैं कुछ कर दूंगा। प्रिंसिपल ने भी बोला नहीं नहीं, आप अच्छे इंसान हो, प्रॉब्लम नहीं है, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आप फिक्र नहीं करो। और लैंडलॉर्ड से भी सेम बात करके सब जगह पे उसने, क्योंकि उसने अच्छा इंसान था, इंसानियत उसने रखी थी, तो सब जगह से उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। और आप बिलीव नहीं करो, वो 15 दिन बाद जॉब छूटने से पहले उसको अच्छी जॉब भी मिल गई, क्योंकि उनका नाम था, उनकी एक रिस्पेक्ट थी कि वो अच्छे इंसान, उनका एक लेबल लगा हुआ था। तो वो इंसान का सारे प्रॉब्लम सोल्व हो गए और अपनी लाइफ स्मूथ चलने लगी और बेटर अपॉर्चुनिटी उसको मिली। तो उनकी फेलियर थी और फेलियर उसकी कन्वर्ट हो गई अपॉर्चुनिटी में। उसकी जॉब नहीं छूटती, उसको नहीं निकालते, तो शायद वही जॉब में वो मैनेज करता रहता, लेकिन उसकी जॉब चली गई तो उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। तो ये फेलियर का सामने हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिली, तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि वो फेलियर को हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। तो कभी स्ट्रेस नहीं लेने का, कभी टेंशन नहीं लेने का। मैं एक आपको कोट सुनाना चाहूंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक अपने टाइम का भी अपने संभालना है। बहुत अच्छी है, हिंदी में है कि जिंदगी में चाहे जो भी परेशानियां होवे, जिंदगी में चाहे जो भी परेशानियां होवे, चिंता करने से बढ़ जाती है, खामोश होने से कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है, और परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। तो हमें याद रखना है, हर हाल में हमें खुदा, भगवान, परमात्मा जिसको मानते हैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बड़ी मुसीबत आने वाली थी, लेकिन छोटी फेलियर से या छोटी मुसीबत से हमने पास हो गए। और इंशाअल्लाह परमात्मा का शुक्रिया अदा करेंगे तो मिरेकल्स होएगा, और आपका जो फेलियर है वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम एवरीथिंग। ये ऐसा मैं पहला सेमिनार देख रहा हूँ जहाँ पे विद द टाइम हमारा एंगेजमेंट इंक्रीज हुआ है एंड बिल्कुल कंसिस्टेंट रहे। सो विद योर परमिशन सर, कैन वी टेक 2 more क्वेश्चंस? Yes, please go ahead. I'm free, up to you. हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है इंटरेक्ट करना बच्चों से। सर एक क्वेश्चन है सर प्रवीण कुमार का। सो हाउ डू वी फाइंड आउट इफ वी आर फिट फॉर कॉर्पोरेट जॉब्स और समथिंग एल्स? How do we find out if we are great fit for corporate job or something else? That's depend on you, प्रवीण कुमार जी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। You see how do you find yourself fit in terms of the corporate job or something else? Because आपकी टैलेंट आपको पता है, आपका ड्रीम आपको पता है। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जीवन में गोल सेट करना सीखो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पूछता हूं कि आप तो क्या आपके गोल अचीव नहीं होते हैं, तो बोला नहीं हमने तो गोल्स कभी सेट किया ही नहीं है। तो गोल सेट नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सी लाइन में जाना है। जो आपका ये क्वेश्चन दिखा रहा है कि आपका कोई लाइफ का गोल नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगले 5 साल 10 साल का गोल होना चाहिए। देखो आज मेरा विजन है 2050 तक, मुझे पता है 2050 तक 2050 तक मुझे क्या करना है। कैन यू बिलीव, आज मैं ऑलरेडी 55 का हूं और अभी नेक्स्ट 30 इयर्स का 25-26 इयर्स का मैंने आगे सोच के रखा है, तो और मुझे नेक्स्ट 26 इयर्स क्या करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद को पता होने चाहिए कि आपका लाइफ का गोल क्या है, आपको क्या अचीव करना है, और उसका ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जब मैं 20 साल का था, अफ्रीका 17 साल की उम्र में गया। अगले 3 साल में मैं $200 से शुरू करके $700-800 तक मैं पहुंचा था। लेकिन वहां मैंने सीखा कि ड्रीम कैसे करना और ड्रीम कैसे अचीव होता है। तो वहां मैंने शुरू किया अपने आप से बोलने का, ड्रीम करने का। मैं खुद से अकेले में जब रहता था कहीं पे भी, मैं खुद से बातें करता था और मैं बोलता था मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं, ऐसे लाउडली जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूं। तो मैं 4 से 5 बार रिपीट करता था, और दिन में 2-3-4 बार जब भी टाइम मिलता मैं अकेले में पागलों की तरह बोलता मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ। 20 साल की उम्र का $700-800, अब 60-70 हजार रुपीस मेरी तनख्वाह थी। कोई करोड़पति नहीं था, लेकिन मैंने सीखा। और वो शाहरुख खान का डायलॉग शिवम जी आपको याद होगा
कि किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में जुड़ जाती है। तो मैं वो यूनिवर्स में मैसेज भेजता था कि मैं करोड़पति हूँ, और साथ में ऑब्जेक्टिव भी रखा था कि मुझे लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करनी है। तो करोड़पति बनना एक बात है, लेकिन करोड़पति बनने के साथ ऑब्जेक्टिव भी कुछ होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि पैसे तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन वो पैसे बर्डन भी बन सकता है और ब्लेसिंग्स भी हो सकता है। तो आप उसको कैसे कमाते हो उसके ऊपर डिपेंड है, देन कैसे यूज करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। आप पैसे जमा करते रहोगे तो वो एक दिन आपका धन है ना, वो आपको क्या बर्डन बन जाएगा और आपको निधन में ले जाएगा। धन के बगैर चले जाओगे, धन सारा यहाँ रह जाएगा। इसके लिए कहते हैं धन धन करते हो निधन हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ड्रीम होना चाहिए और आपके पास राइटिंग में होना चाहिए कि आपके जीवन में क्या अचीव करना है। उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर दोगे कि आप कॉर्पोरेट के लिए, जॉब के लिए फिट हो, या खुद के बिजनेस के लिए फिट हो, या कोई और बड़ी पोजीशन के लिए, पॉलिटिक्स के लिए फिट हो। शायद आपका ड्रीम हो प्राइम मिनिस्टर बनना है, यू कैन ड्रीम इट, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन बी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो अपने आप को तैयार करो एंड डोंट वरी, जस्ट गोल सेट करो, लाइफ अपने आप आपको रास्ता दिखा देगी। Sir, one last question, sir. Being a chairman Yeah. of Kojak Group, sir, what your piece of advice to the talent acquisition team? मतलब आपकी तरफ से ये मैसेज क्या जाता है टैलेंट एक्विजिशन टीम को कि आपको किस टाइप के, किस एट्रीब्यूट्स आप लोग सर्च आउट करते हो एज अ प्रॉपर एम्प्लॉय? देखो, मैं तो मेरी लाइफ से बात करूंगा। बैलेंस लाइफ की टिप्स जो मैंने पहले भी दिया है शिवम जी, वही टिप्स दूंगा। आप ह्यूमन हो, आप इंसान हो, बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड हो। हर एक इंसान यूनिक क्रिएट किया गया है, कोई किसी का वो फैक्ट्री का कोई प्रोडक्शन नहीं है। ये वी आर क्रिएटेड बाय गॉड हिमसेल्फ एंड वी हैव सो मच टैलेंट। जो टैलेंट और जो पावर हमारे महात्मा गांधी जी के पास था, या हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास है, या धर्मगुरु महात्माओं के पास था या है, वो सब पावर हमारे पास भी है, वो सब स्ट्रेंथ हमारे पास भी है। हमारे ऊपर है हमें उस कौन से एरिया में कितना डेवलप करना है। आप फिकर, चिंता, स्ट्रेस टेंशन से आप दूर रहो, जितना अवॉइड कर सकते हो इतना मेंटली स्ट्रांग होके स्ट्रेस मत लो। दूसरा, आप स्टूडेंट्स हो तो आप ब्रेकअप और पैचअप के चक्कर में अननेसेसरी टाइम एंड लाइफ को वेस्ट नहीं करो। टाइम आएगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब मिल जाएगा, लेकिन 15-17 साल की उम्र में आप थोड़ा पेशेंस कर लो इसके अंदर। क्योंकि ये ब्रेकअप पैचअप और आपको बहुत स्ट्रेस देता है। वो देता हूँ जो लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए उनको, मैंने बोलता नहीं कि छोड़ दो अभी बट देख लो कि उसमें हैप्पीनेस मिलता है, खुशी मिलती है तो ठीक है। बट ये सब चीजें है ना, बात की बात है। अभी आपकी लाइफ की प्रायोरिटी है, आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो सेक्युलर एजुकेशन से, और बैलेंस लाइफ से जो चीज मैंने बताई उनसे भी आप अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जैसे हमने किया है और आज भी हम यूज कर रहे हैं उसको। यस शिवम जी। Thank you so much, sir, for your time. And it's really was a very insightful and very interesting session. And questions are really endless. And I really wish, sir, आप IIT पटना आए एक बार, जब भी आप इंडिया आए, sir. So please visit IIT पटना. And आप जब आएंगे तो it will be very great honor to have you with IIT पटना. And ये जो questions है directly आपके पास आएंगे. So we really want you to share the platform with IIT Patna. And being a very historic city, यहाँ पे अभी नालंदा यूनिवर्सिटीज भी रिफर्मिश की गई है. So I guess आप जब आएंगे यहाँ पे, so it will be a very great opportunity for us to take a direct message, to take a direct advice from you. So Thank you. No, definitely. Thank you. Yes, please go ahead. So thank you, Mr. Aditya, for sharing your insights with us today. And thank you everyone for joining us. And we want to share the very inspiring message, the teaser of Sir's movie that we all team has seen, and we really want you all to see and to go through that movie. It's a very really inspiring journey, journey with full of ups and downs, and with Sir's great gestures. Sir has made it possible what Sir is today. So let me start that video.
मैं अपना ट्रेडिशनल बिजनेस ग्रोसरी का शुरू करना चाहता हूँ। बिजनेस को जमाने के लिए 4 चीजें जरूरी है: स्वभाव, अनुभव, नेकी और नसीब। और ये सब तुम्हारी नस नस में भरी हुई है। 10वीं का रिजल्ट आया, उसमें फेल हो गया हूँ। अरे तो क्या हुआ, तुम मेहनती हो। देखो पसीना यहाँ भी बहाना है और वहाँ भी बहाना है। मैं अक्टूबर 1986 में पोरबंदर से किन्सासा पहुंचा। ये सब जो तुम्हें दुकानें दिख रही है ना, ज्यादातर तो हमारे सौराष्ट्र के लोगों की है। कैसा रहा आज का दिन? पराया मुल्क, पराई भाषा। वो तो तुम 3 महीने दुकान में खड़े रहोगे ना तो आ जाएगी। यहाँ के लोगों को लगता है कि हम इनका आर्थिक शोषण करके बड़े बने। यहाँ के लोगों का बस चले तो ये रातों रात हमको यहाँ से भगा दे। किन्सासा की हालत नाजुक हो गई। आप लोगों की जान को खतरा है, आप अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ। सुना है वो यहाँ भी आ सकते हैं, निकलो यहाँ से। सारे शहर की दुकानें लूट ली गई थी। पाँच साल की हमारी मेहनत एक ही रात में जलकर खाक हो गई। तुम सब परदेश जाते हो, मेहनत करते हो, पैसे कमाते हो, अचानक वो अफ्रीकन आते हैं, सब कुछ लूट के चले जाते हैं। तो अपना धंधा दूसरे देशों में भी फैलाओ ना। मेरी लाइफ में जो भी कोई नेगेटिव घटना घटती है ना, उसका रिजल्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। I think he doesn't have executive mentality. आज से हम अलग हो जाएंगे। बस इतना ही काफी है, फिर तो क्या है कमी। दिल अक्सर ये कहता है, हाँ दिल। आज से इन बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मेरी। तैयार होना लड़ने के लिए। शुक्र छे व्याधि न। शुक्र है व्याधि न थी। 3 साल के अंदर 8 राज्यों में मैंने अपने 32 स्टोर्स खोले। शुक्र है व्याधि न थी। शुक्र है व्याधि न थी। ये है मेरा घर। इस घर में हम 9 लोग रहते हैं। इतनी दरिद्रता फिर भी इतनी उदारता। पैसों की कीमत ज्यादा है कि इंसान की। एक फाउंडेशन एस्टेब्लिश करें, लोगों की सेवा करनी है, क्योंकि सेवा और दान से ही लोगों के दिल जीते जा सकते हैं। शुक्र है व्याधि न थी। शुक्र है व्याधि न थी। शुक्र है व्याधि न थी। Hello, am I audible? Yes, yes. Sir, it was a very insightful session and we want some closing line from you. एक आपका मैसेज जो डायरेक्ट हम जानना चाहते हैं सर, एक क्लोजिंग लाइन फ्रॉम सर। क्लोजिंग लाइन में पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। मैंने लिंक्डइन खोला था सेशन से पहले, तो बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। दैट इज फॉर मी इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट, तो थैंक यू वेरी मच। और क्लोजिंग लाइन बस यही बोलूंगा कि 1 घंटे के अंदर आपने बहुत कुछ सुना मेरे यहाँ से, लेकिन जरूरी नहीं है जितना सुना वो सारा आपके जीवन का हिस्सा बन जावे। लेकिन एक चीज एटलीस्ट कुछ न कुछ आप टेक अवे कर लो और उसका पार्ट ऑफ लाइफ आप बना दो। देन आई विल बी लाइक ब्लेस्ड। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा हम्बली, प्लीज इसमें से जो चीज आपको अच्छी लगी है, 1-2 चीज वो पार्ट ऑफ लाइफ हो जानी चाहिए और मेरे साथ शेयर करना। और कभी भी कोई क्वेश्चन आ जावे प्लीज अपना भेजना क्वेश्चंस। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। अनम्यूट करिए। So as we conclude today's session, let us remember that true success is not just about growth in business or career, but also achieving a balanced life where growth is holistic and inner peace is our foundation. So we really invite you, sir, to have a stay with us for 2-3 days. And we really want a direct leadership talk for you, sir. Thank you for joining the session. And thank you everyone for your patience and for your engagement. Thank you all. Thank you, Shivam ji, and let's connect again in 2025, and I'll see if I can make it. I would love to come. Sure, sir. It will be honor for me to come. Sir, same here, sir.
Thank you, students. Thank you very much, and God bless you all. Thank you, sir.